Welcome to the second TIS Takshla lecture on contemporary challenges to India's democracy. Through this series of annual lectures, Takshla Educational Society and TIS Center for Development, Practice and Research hope to initiate a dialogue on the socio-political and economic concerns of our society. Its true status in the current times, the forces that led us to this point, and the movements incumbent to safeguarding the dignity, freedom, and aspirations of the common man. A small step towards a cherished dream, this effort has brought in remarkable encouragement and support. We were privileged to have Sri Gopal Krishna Gandhi deliver the first TIS Takshla lecture in February 2019. Established in 2016 as an independent center of TIS Mumbai, the Center for Development, Practice and Research Patna is an initiative funded and supported by Takshla. TIS Patna Center aims to establish itself as a pioneer in migration studies in India through scholarly research and training programs. It offers short-term courses for early career researchers and practitioners. The center is building itself into a vibrant academic institution which not only contributes in generating and disseminating people-based knowledge, but also creates an environment for serious intellectual debate and deliberations in the city. Our lecture today will be delivered by Dr. Harsh Mandar on the topic Bharat Mein Bandhuta Ki Khoj. Dr. Harsh Mandar is an eminent writer, researcher, teacher, and social activist who works with street children, homeless people, and survivors of mass violence and hunger. He has founded the campaigns Aman Biradari for secularism, peace and justice, Nyayagrah for legal justice and reconciliation for the survivors of communal violence, Dilse for street children, and Hosla for urban homeless people. Currently, he is the director of the Center for Equity Studies, a research organization based in New Delhi, which publishes the annual India Exclusion Report. After serving in the Indian Administrative Service in Madhya Pradesh and Chhattisgarh for almost 2 decades, Dr. Mandar took voluntary retirement in protest of the Gujarat riots in 2002. He has worked as country director to ActionAid India, a development support organization. He is a founder member of the National Campaign for the People's Right to Information and the founder chairperson of the State Health Resource Center, Chhattisgarh. He was a member of the core groups on bonded labor and mental hospitals of the National Human Rights Commission, as well as of various other national committees. Dr. Harsh Mandar is a PhD from Raj University in Amsterdam. His thesis was titled Vulnerable People and Policy Development in India, Designing State Interventions for Hunger, Homelessness, Destitution, and Targeted Violence. He has taught courses on poverty and governance at the IIM Ahmedabad, the LBS National Academy of Administration, Mussoorie, St. Stephen's College, New Delhi, the Nalsar University of Law, Hyderabad, and the Nelson Mandela Center for Peace and Conflict Resolution at Jamia Millia Islamia, Delhi. A prolific writer, Dr. Mandar has authored books like Looking Away, Inequality, Prejudice, and Indifference in New India, Unheard Voices, Stories of Forgotten Lives, Ash in the Belly, India's Unfinished Battle Against Hunger, and Partitions of the Heart, Unmaking of the Idea of India. He's also contributed articles to newspapers and scholarly journals. His stories have been adapted into Shyam Benegal's film Samar and Mallika Sarabhai's dance drama Ansuni. Dr. Mandar has received a number of awards, including the Rajiv Gandhi National Sadbhavna Award, the M.A. Thomas National Human Rights Award, the South Asian Minority Lawyers Harmony Award, and the Chishti Harmony Award. It's an honor to have such a prolific social activist on this platform. Please join me in welcoming Dr. Harsh Mandar. आज हमारा जो देश है जिस मोड़ पे खड़ा है, पिछले 1.5-2 महीनों से जो हम देख रहे हैं, चारों तरफ विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं, मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। ये जो लड़ाई हम भारत के लोग देश के हर कोने में कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं है जो नागरिकता में भेदभाव करने की बात करती है।
ये गहराई में अगर हम सोचें तो ये एक लड़ाई है बंधुता के लिए, इंसानियत के लिए। और यही कारण है जो मैं मानता हूँ कि इस पल को, इस क्षण को बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। आरएसएस के विचारधारा के लोग मानते हैं कि ये वक्त है जब हमें बंटवारा का जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे हमें पूरा करना है, और ये कानून एक तरह से उस अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने की बात कर रहे हैं। उनके हिसाब से जो यहाँ के जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं वो पाकिस्तान चले जाएं या बांग्लादेश चले जाएं और वहाँ के हिंदू यहाँ आ जाएं तो ये अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन पूरा हो पाएगा। मैं मानता हूँ कि हम भारत के लोग द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल को पूरा कर रहे हैं। और वो अनफिनिश्ड बिजनेस क्या है? वो है एक जो कल्पना की गई थी हिंदुस्तान, हम भारत किस तरह का देश होगा, वो काम अधूरा रह गया है। और उस काम को पूरा करना आज के नौजवान जो इस पूरी लड़ाई में रहनुमाई कर रहे हैं, और महिलाएं, वो आज़ादी की लड़ाई की जो मूल भावना है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं जो समझाने की कोशिश, कहने की कोशिश करूँगा वो ये है कि ये इंसानियत, इस देश में इंसानियत होगी, बराबरी होगी। ये ऐसा देश होगा जहाँ सबका स्वागत होगा, मोहब्बत के साथ, बंधुता के साथ। बंधुता से हम क्या समझते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान हमें जब लिखा था तो उसकी जो प्रियम्बल है उसमें 4 ऐसे लफ्ज़ हैं जो इस संविधान की पूरी आत्मा को हमारे सामने रखती है। पहला है जस्टिस, न्याय, इंसाफ। तो ये ऐसा देश होगा जहाँ सबके लिए इंसाफ सुनिश्चित होगा। संविधान एक कल्पना भी थी, एक वादा भी था जो हम भारत के लोगों के प्रति एक वादा किया था। और उसमें सबसे पहली बात यही थी कि इस देश में इंसाफ सबके लिए बराबर का रहेगा। एक दूसरी बात जो कही गई थी कि इस देश में आज़ादी रहेगी। आज जो हम आंदोलन देश के हर कोने में देख रहे हैं उसमें आज़ादी के नारे उठते हुए हम सुन रहे हैं। किस तरह की आज़ादी? देश में सबसे पहले तो इबादत की आज़ादी रहेगी कि आप जिस तरह से भी जिस मज़हब को अपनाना चाहते हैं उसके लिए आपको हर किस्म की आज़ादी रहेगी, उसकी सुरक्षा रहेगी और कोई भेदभाव नहीं होगा। तो और फिर विचार की आज़ादी, विरोध करने की आज़ादी, असहमत होने की आज़ादी, अपने संगठन बनाने की आज़ादी, ये अलग अलग किस्म की आज़ादी भी इस संविधान में हम भारत के लोगों ने ये वादा किया था कि इस देश में आज़ादी भी रहेगी। एक तीसरी बात है संविधान में और वो है इक्वालिटी, समानता, समता, बराबरी। सब में अवसर की समानता रहेगी, ये हमने संविधान में कहा और वादा किया था कि सबको बराबर के अवसर मिलेंगे कि वो अपने
जो पोटेंशियल हैं और उनके जो सपने हैं, जो आकांक्षा हैं, उनको पूरा करने के लिए अवसर की का समानता रहेगा। और साथ में हर एक को हम एट द लेवल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी सब बराबर हैं। आप गरीब हों, अमीर हों, आपकी जात, आपके मज़हब, आपका रहन सहन, जो भी हो, लेकिन एट द लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हम सब बराबर हैं। ये भी हमारे संविधान में हमने वादा किया था। लेकिन इन तीनों के बाद एक और वादा भी है, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का जो अगर लिटरल ट्रांसलेशन हम हिंदी में करें, हिंदुस्तानी में करें, वो है भाईचारा। तो भाईचारा बहुत उत्तम शब्द नहीं है इस भावना को समझाने के लिए, क्योंकि उसमें बहन शामिल नहीं है। लेकिन हिंदी संविधान में फ्रेटर्निटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है बंधुता। बहुत खूबसूरत शब्द है। संस्कृत से अगर हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें, वो उससे ये एक अर्थ है कि हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इस आधार पे हमने ये देश बनाया है कि इसमें रहने वाले सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बंधुता से ये भी मतलब हो सकता है दोस्ती, हम सब के बीच में दोस्ती का रिश्ता हो, वही बंधुता है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि हालांकि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और बंधुता, ये सभी इस संविधान के एक तरह से बुनियाद हैं, लेकिन इन चारों में से भी अगर सबसे बुनियादी कोई हिस्सा है हमारे संविधान का, वो है बंधुता। और उन्होंने ये समझाया कि बंधुता के बिना भी इंसाफ, आज़ादी और बराबरी सुनिश्चित की जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर सरकार और सत्ता का बल इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर इंसाफ, आज़ादी और समानता समाज का एक प्राकृतिक हिस्सा बनना ज़रूरी है, तो उसके लिए बंधुता ज़रूरी है। इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं। हमें एक दूसरे की इस अलग अलग भावनाओं को और विचारों को, हमारी विविधता को अगर हमें इज़्ज़त देना है और जगह देना है, तो एक तरीका ये है कि सरकार के दबाव और कानून के दबाव और न्यायालय के हस्तक्षेप और पुलिस के हस्तक्षेप से हम सुनिश्चित करें कि कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे। ये सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में समता भी होगा, इंसाफ भी होगा और आज़ादी भी रहेगी। लेकिन उनका कहना है कि अगर बंधुता हो तो सरकार के दबाव से ये सब नहीं होगा, बल्कि ये एक समाज का एक प्राकृतिक हिस्सा बन जाएगा कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे को बराबर के इंसान के हैसियत से उनके साथ हम एक दूसरे से व्यवहार करेंगे। इसलिए अगर एक शब्द में, जब हम संविधान की बात करते हैं, अपने आईन के बारे में बात करते हैं, अगर एक शब्द में हमें उसकी पूरी भावना को समझना है, तो वो एक शब्द है बंधुता। बंधुता से आगे हम क्या समझते हैं? बंधुता है एकजुटता, सॉलिडेरिटी। बंधुता है करुणा, एक दूसरे के दर्द में शामिल होना। बंधुता है एम्पैथी, संवेदना, आपके दर्द को अपना दर्द महसूस करना। बंधुता है केयरिंग,
ये भावना कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। आप तकलीफ़ में हो तो मैं आपका ख्याल रखूं, मैं तकलीफ़ में हूँ तो आप मेरा ख्याल रखें। ये है बंधुता। पर सबसे ज़्यादा अगर बंधुता को हमें समझना है तो उसका मतलब है मोहब्बत। और एक ख़ास किस्म की मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ, विच आई वुड कॉल रेडिकल लव। नॉट सिंपली लव बट रेडिकल लव। और रेडिकल लव से मेरा मतलब क्या है, उसका शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण हमारे अपने हाल ही के इतिहास में उस वक्त का है जब देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा उस वक्त हुआ। हम लोग याद करें, खास करके जो नौजवान हैं यहाँ जो बैठे हैं, ऐसा वक्त जब हिंदू मुस्लिम फसादों में 10 लाख लोग मारे की जाने गई, 10 लाख लोग। ऐसे वक्त में जब मेरे अपना परिवार भी रावलपिंडी में थे, वो भी उजड़ के शरणार्थी के तौर पे जो आए, सभी के दिलों में नफ़रत थी, गुस्सा था, इधर भी और उधर भी। धर्म के आधार पे एक अलग देश भी बन गया था, पाकिस्तान। तो बहुत आसान था उस वक्त हिंदुस्तान को तय करना कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बना है तो हिंदुस्तान भी एक हिंदू देश बनेगा। लेकिन महात्मा गांधी उस वक्त जब खड़े होकर उन्होंने कहा कि नहीं, ये देश में सबको बराबर के हक होंगे और ये देश मुसलमानों का उतना ही है जितना और किसी मज़हब के लोगों का। उस वक्त इस बात को कहना और इस बात के लिए लड़ना, उसमें मोहब्बत भी शामिल था, लेकिन साहस भी। और उस साहस से पैदा हुआ जो जिस मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ रेडिकल लव। और बंधुता, मुझे लगता है कि बंधुता में हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में, अंधेरे तूफ़ानी रात, नफ़रत की, उस सब के बीच में मोहब्बत की बात करना, वो है बंधुता। और उसका रास्ता महात्मा गांधी ने हमें दिखाया उस वक्त, उसका उदाहरण जो दिया। हम याद करें कि उन फसादों के बीच में पहले वो नौखोली में गए, जो आज बांग्लादेश में है, जहाँ बहुत बड़ा कत्लेआम हिंदुओं का हुआ था। और नंगे पाँव वो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस ज़मीन के अंदर लोगों का खून है जो मारे गए हैं। और उस पूरे नफ़रत के बीच में वो घर घर गए और लोगों को सांत्वना दिया, उनके ज़ख्मों को भरने की कोशिश की। वहाँ से वो कलकत्ता गए। कलकत्ता में फसादों को रुकने का नाम ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं दिख रही थी। वहाँ ज़्यादा मुस्लिम लोग मारे जा रहे थे। और गांधी जी ने तय किया कि मैं उपवास करूँगा और तब तक उपवास रखूँगा जब तक ये नफ़रत पूरी तरह से थम ना जाए। और उस वक्त जब हम दिल्ली में और देश के और कोनों में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, महात्मा गांधी कलकत्ते में थे और उन्होंने ये उपवास रखने का फ़ैसला किया। और लोग बताते हैं कि शुरू में उसका असर नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे हर रोज़ जहनी कहती थीं कि हम खाना कैसे बनाएं, बापू भूखे बैठे हैं। और इस तरह का लोग एक दूसरे को समझाते रहे और धीरे धीरे ये नफ़रत कम हो पाया और फाइनली रुका।
कई कहानियाँ उस वक्त की बताई जाती हैं। एक कहानी जो मेरे लिए बहुत प्रिय है, वो महात्मा गांधी उपवास पे जहाँ बैठे थे, एक हिंदू आदमी गए और बहुत उनके दिल में नफ़रत थी। उन्होंने एक रोटी गांधी जी के मुंह पे फेंका और कहा कि ये खाना तो खा लीजिए, क्योंकि मैं आपके मृत्यु का बोझ अपने ज़मीन पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मेरी हाल को समझिएगा। मेरा इतना एक छोटा सा बेटा था जिसको मुसलमानों के भीड़ ने आके उसका कत्ल कर दिया। तो मैं अपने दिल की नफ़रत और दर्द को कैसे उससे जूझ पाऊँ। तो गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि अगर सचमुच आप अपने इस दर्द से उभरना चाहते हैं तो मैं एक रास्ता बताता हूँ। एक ऐसा छोटा बच्चा आप ढूंढिए, एक मुस्लिम बच्चा जिसके माँ बाप को हिंदुओं की भीड़ ने कत्ल कर दिया इन दंगों में, और उस बच्चे को आप गोद लीजिए, अपने बेटा मानते हुए उसको बड़ा करिए, अपने ही मज़हब में, उसी के मज़हब में उसे बड़ा करिए, और शायद उससे आपको इस नफ़रत से जूझने की एक शक्ति आपको मिलेगी। तो लोग बताते हैं कि 40 दिनों के बाद जब पूरी तरह से शांति हुई, तभी महात्मा गांधी ने अपना उपवास तोड़ा। उस वक्त उन्होंने तय किया था कि मैं अब पाकिस्तान जाऊंगा बिना वीज़ा के, और वहाँ मैं इसी तरह से शांति के लिए जद्दोजहद करूँगा। लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में जो हालात थे उससे वो बहुत परेशान हुए, क्योंकि मेरे परिवार जैसे लाखों परिवार उजड़ के दिल्ली में आए थे, शरणार्थी कैंपों में थे, और उनके दिल में वही गुस्सा और नफ़रत थी। अनीस किदवाई अपने संस्मरण में लिखते हैं कि उनके जो शौहर थे वो इन्हीं फसादों में मारे गए, लोगों को की जान बचाने की कोशिश में। और अनीस किदवाई जो बेवा हो गई थी, इद्दत भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उनको लगा कि मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, तो वो गांधी जी के पास आए और वो बताया कि गांधी जी बहुत उदास थे, और गांधी जी ने एक बात कही उनको। उन्होंने कहा कि मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के इस शहर में घूम ना सके, तब तक मेरा काम अधूरा रह जाएगा। उससे थोड़ा पहले एक और बात भी उन्होंने कही कि जब आप दुविधा में हो तो मैं एक ताबीज़ आपको देता हूँ उस दुविधा से निकलने के लिए। वो ताबीज़ ये है कि आप सबसे अंतिम, सबसे कमज़ोर, सबसे गरीब इंसान को याद करिए जिसे आपने कभी ज़िंदगी में देखा हो। उसकी तस्वीर अपने मन में लाइए और फिर सोचिए कि जो हम करने जा रहे हैं, क्या उन्हें, उस इंसान को उससे कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। तो मैं मानता हूँ कि अपने ज़िंदगी के आखिरी महीनों में ये एक नहीं बल्कि ये 2 ताबीज़ उन्होंने दिए। एक उस अंतिम इंसान को याद करना, और एक ये कि हम ऐसा देश बनाएं जहाँ एक मुस्लिम बच्चा बिना डर के घूम सके। ये गांधी जी ने कहा। उनका जो आखिरी उपवास है वो इसी रेडिकल लव का मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत उदाहरण है, क्योंकि उस वक्त तक नफ़रत चरम सीमा तक पहुंच गई थी। और लोग बताते हैं कि दिल्ली में जो बहुत बड़ा मस्जिद था है कनॉट प्लेस में, उसमें ज़बरदस्ती मूर्तियां रख दी गई थीं। मेहरौली में जो मज़ार है उसमें मूर्तियां रख दी गई थीं। और जो शरणार्थी आए थे, सिख और हिंदू शरणार्थी,
वो मुस्लिम आबादियों में जाके लोगों को मार के उनको वहाँ से निकाल के उन घरों पे कब्जा करते थे। और शरणार्थी कैंपों में अब मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी, जिनको मजबूरी हुई कि वो पाकिस्तान ही जाएं, उनके सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। तो गांधी जी की आखिरी जो उपवास, जिसके 2 हफ्तों बाद उनकी जान ले ली गई थी, उसमें ये 2 मांगें शामिल थीं। एक ये कि हर मस्जिद और दरगाह को पूरी इज़्ज़त के साथ लौटाया जाए हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को। इस बात उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए हिंदू धर्म का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर ज़बरदस्ती हमने किसी भी और मज़हब के जगह पे कब्ज़ा किया या उसको इज़्ज़त नहीं दिखाई। और वो बात जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि जो तथाकथित मंदिर अयोध्या में आज बनाया जा रहा है, उसे गांधी जी कभी भी एक धर्म का स्थल के रूप में स्वीकार नहीं करते। और दूसरी उनकी ये मांग थी कि जो मुस्लिम लोगों को घरों से आपने निकाल के उन घरों पे कब्ज़ा किया है, वो घर उन्हें लौटाया जाए पूरी इज़्ज़त के साथ। इरफान हबीब जो इतिहासकार हैं और उस वक्त 19 साल के थे, वो बताते हैं कि आप कल्पना करें कि ये इंसान क्या ये कह रहे थे। वो लोग जिनके घर और ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी, मुस्लिम भीड़ के कारण जो आज पाकिस्तान में है, वो यहाँ आए। उन्होंने वही काम यहाँ के मुस्लिम लोगों के साथ करके शरणार्थी कैंप से निकल के अब उनको घर मिल गया है। और महात्मा गांधी ये कह रहे हैं कि आप उनको वापस बुला के उन्हें घर वापस करिए और ख़ुद शरणार्थी कैंप में वापस लौट जाइए। इस तरह की मांग करना भी आज इसकी कल्पना भी बहुत मुश्किल है। जो आज हमारे जो नेता हैं, उनसे हम ये अपेक्षा भी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उन्होंने, और उस वक्त इतनी ज़्यादा नफ़रत थी देश में कि नेहरू, मौलाना आज़ाद, ये सब लोग भी आए और गांधी जी को कहा कि ये वक्त नहीं है, हमारा अनुरोध है कि आप ये उपवास ना रखें, ये मांग नहीं रखें आज के वक्त में। लेकिन गांधी जी की ज़िद थी कि बस रखूँगा। और कहते हैं कि पहले दिन में उनके मांगों की समर्थन में 10,000 लोग सड़कों पे निकले। 5वें दिन तक 1 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पे निकले इन मांगों के समर्थन में, और पूरे देश को उनकी मांगों को मंजूर करना पड़ा। और हिंदू महासभा, RSS संगठनों को भी हस्ताक्षर करना पड़ा कि ये मस्जिदों पे वो कब्ज़ा ना करके उसको लौटाएंगे। मैं मानता हूँ कि उस दिन जब 1 लाख लोग दिल्ली के सड़कों पे निकले हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और सबसे ज़्यादा बंधुता के लिए, उस वक्त ये तय हुआ कि हमारा देश वही होगा जिसे आज़ादी की लड़ाई में जिसकी कल्पना की गई थी। ये इंसानियत का देश होगा, मोहब्बत का देश होगा, बंधुता वाला देश होगा, जहाँ मज़हब के आधार पे, जाति के आधार पे किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना होगी, किसी के दिल में डर की इजाज़त ना होगी। इतने सालों बाद 73 साल बीत गए हैं, मुझे याद नहीं है कि उस वक्त और आज के बीच में कभी भी ऐसा मौका आया जहां बंधुता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी की एकता के लिए लोग सड़कों पे निकले हैं।
वही हुआ है पिछले 1.5-2 महीनों में। और इसलिए मैं मानता हूँ कि एक अंधेरी रात, बहुत घने तूफ़ानी अंधेरी रात के बाद अचानक ऐसी रोशनी हमें दिख रही है कि हमें लग रहा है कि ये देश आज भी वही, इस देश में गांधी जी की हत्या तो हुई, लेकिन गांधी जी की आत्मा आज भी हम सब के बीच में आज भी जिंदा है। ये हम लोगों ने पिछले कुछ हफ्तों में साबित किया है। ये अंधेरी रात की मैंने बात की, इसके कई पहलू हैं। एक हिस्सा, और ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हम पूरे देश में देख रहे हैं कि एक तरफ असमानता बढ़ती जा रही है। इतना धन है कुछ लोगों के हाथों में, और कई लोग आज भी भूख में बेघर, बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य की सुविधा के लिए, बिना साफ पानी के जीने के लिए मजबूर हैं। देश, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ माइनॉरिटी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान या अमेरिका को देखें या पूरी दुनिया में हम देखें कि लोग किस तरह के नेताओं को चुन रहे हैं, और उन नेताओं से मेरी परेशानी कम है। वो नेता तो ज़बरदस्ती तो पावर में नहीं आ रहे हैं, ना डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती सत्ता छीना है, ना ब्राज़ील में बोल्सोनारो ने ज़बरदस्ती सत्ता हाथ में लिया है, ना नरेंद्र मोदी ज़बरदस्ती सत्ता में आए हैं। लेकिन ये बहुत साफ है कि दुनिया के हर देश में लगभग एक किस्म के नेता को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करने जा रहे हैं। और ये ऐसे नेता हैं जो वो बात नहीं कभी कहेंगे जो गांधी जी ने कहा, जो हमें जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें विभाजित करने की उनकी पूरी राजनीति है। आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, ये हमारा फैसला है। लेकिन जिस तरह के नेता डोनाल्ड ट्रंप हों या नरेंद्र मोदी हों या बोल्सोनारो हों या बहुत सारे और हों, ये ऐसे नेता हैं जिनकी पूरी राजनीति हमें बांटने की राजनीति है। हमारे बीच की जो दूरियां हैं उन्हें जोड़ने की राजनीति नहीं है। हमारे दिल में जो नफ़रत है, हर एक के दिल में अच्छाई भी है और बुराई भी है। लेकिन मैं मानता हूं कि गांधी जी ऐसे नेता थे जो हमारी अंदर की अच्छाई को उन्होंने निकाला, और पूरा देश या देश के ज़्यादा लोग उस अच्छाई में शामिल हुए। आज के नेता हैं जो हमारे दिल के अंदर उस अच्छाई और मोहब्बत की संभावना भी है और नफ़रत की भी संभावना है। हम ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं जो हमारी उस नफ़रत को एक तरह से इजाज़त दे रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उसको सही ठहरा रहे हैं। और हम क्यों ऐसे नेताओं को चुन रहे हैं, ये समाज के अंदर हमें अध्ययन सोचना ज़रूरी है। तो ऐसे वक्त में जहाँ असमानता बढ़ती जा रही है, नौजवानों को, जो आम नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार नहीं है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, बहुत सारे बच्चों को, ऐसी स्थिति में और नफ़रत आम होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक किसी तरह का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऐसे वक्त में मैं मानता हूँ कि अगर एक चीज़ हमें
बचा सकता है, वो है बंधुता की भावना। और उसे मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले असमानता की बात थोड़ा करें। कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पिछले 30 सालों में जितना धन का विस्तार हुआ है, उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बिल गेट्स को हम जानते हैं, आज वो सबसे अमीर नहीं है, दूसरे नंबर के हैं। पर एक आंकड़ा मैं कहीं पढ़ रहा था कि बिल गेट्स, मान लीजिए कि आज के बाद वो बिल्कुल काम करना बंद कर लें और अपने पैसों को वो किसी बैंक में भी नहीं डालें, बस एक तिजोरी में रखें और रोज़ $10 लाख वो सिर्फ खर्चें और कुछ ना करें, तो आपको कितने साल उनका धन रहेगा? कोई बता सकें? 218 साल। 218 साल अगर वो रोज $10 लाख खर्चें, इस तरह का धन कुछ लोगों के हाथों में आ गया है। हिंदुस्तान की बात देखें तो सिर्फ 9 लोगों के पास इतना धन आज है हिंदुस्तान में जितना देश की आधी आबादी है। तो देश की आधी आबादी एक तरफ और 9 लोग, ये सामने वाले बेंच में बैठे हुए लोगों से भी कम लोग के पास उतना धन है जितना देश की आधी जनता। अगर एक गांव में एक इंसान है जो सारे अपनी प्रौढ़ जिंदगी वो काम करते रहें और रोज उनको काम मिले और रोज न्यूनतम मजदूरी मिले, तो कितने साल लगेंगे कि वो उतना कमाएं जितना सबसे बड़े कंपनी के जो सीईओ हैं वो एक साल में कमाते हैं। 940 साल उस ग्रामीण मजदूर को लगेगा उतना कमाने में जितना सबसे बड़े सीईओ को एक साल में लगता है। ये हमारे देश की असमानता है। हमारे देश में डॉलर बिलियनर्स की तीसरी सबसे बड़ी आबादी आज हिंदुस्तान में है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है और दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा हिंदुस्तानी है। और कुपोषण की बात मैं और आप कर लें, इसका मतलब क्या है, थोड़ा हम सोचें। कुपोषण का मतलब ये है कि पोषण के अभाव में एक बच्चे का जो मन है और शरीर है, जितना वो विकसित हो सकता है वो नहीं विकसित हुआ, और उस बच्चे में इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि वक्त से पहले उसकी छोटी सी बीमारी से ही उसकी जान जा सकती है। इसका मतलब है कुपोषण। और आज भी इतने धन के बीच में हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। ये भी हमारे देश की सच्चाई है। और धन की जो असमानता है उससे भी बढ़ के है जो सामाजिक असमानता है, जाति का और लिंग का, और मज़हब के बीच में भी एक सामाजिक असमानता है। जाति का जहाँ तक सवाल है, रोहित वेमुला एक पीएचडी स्कॉलर जिन्होंने मजबूर होके जब उन्होंने अपनी जान ली तो एक चिट्ठी वो छोड़ गए थे। हर हिंदुस्तानी को उसे मैं मानता हूँ कई बार पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक जानलेवा दुर्घटना है जिससे मैं अपने आप को कभी बचा नहीं सका।
जन्म एक जानलेवा दुर्घटना। हम सब आज भी ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आपका जन्म दुर्घटना हो या हर संभावना आपके लिए खोले। जो हम हासिल किए करते हैं, मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। मैं कई जगह जैसे IIM अहमदाबाद में हर साल पढ़ाता हूँ और वहाँ मैं अपने छात्रों को शुरू में एक बात कहता हूँ पहले लेक्चर में, क्योंकि IIM अहमदाबाद में समझते हैं कि हम तो सबसे काबिल छात्र हैं, इसलिए हम IIM अहमदाबाद में हैं। तो मैं इनको कहता हूँ, मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस कमरे में हैं क्योंकि आप में सबसे ज़्यादा मेरिट है, ना मैं इस कमरे में हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा मेरिट है। हम सभी इस कमरे में इसलिए हैं क्योंकि इस देश के कम से कम 100 करोड़ लोगों को वो मौके नहीं मिले जो हम और आपको मिले, इसलिए हम इस कमरे में हैं। और हमें उसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है जब हम मेरिट की बात करते हैं। आज भी हमारा जन्म ये तय करता है कि हम जीवित भी रह पाएंगे कि नहीं, हमें पोषण मिलेगा कि नहीं, हमें शिक्षा मिलेगी कि नहीं, किस तरह की शिक्षा हमें मिलेगी और कब तक हमें शिक्षा मिलेगी, और ज़िंदगी के रोज़गार के अवसर हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये मेरी मेहनत, मेरा दिमाग कितना तेज़ है, मेरे सपनों की जो उड़ान है वो कितनी ऊंची है, ये नहीं तय करेगा कि मैं क्या बनूंगा। मेरा जन्म तय करेगा कि मेरी ज़िंदगी में मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। मुख्य रूप से मेरा जन्म ही आज तय करेगा। यही है जाति, यही है जाति। और उस जाति की जो भावना है वो जिस हद तक हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हम लोग ज़्यादातर लोग, खास करके सवर्ण जाति में जिनका जन्म हुआ है और जो संपन्न परिवार में जन्म हुआ है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें तो जाति दिखती ही नहीं है। उस तरह से जब मछली पानी में तैरती है तो कहते हैं पानी कहाँ है। वो हमारा ज़िंदगी का इस हद तक हिस्सा है और आज भी है। लेकिन ये सब भी जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है, उससे भी ज़्यादा अगर मुझे कुछ चिंतित करता है वो है कि हमें तकलीफ नहीं है। वी डोंट केयर। हिंदुस्तान में नोम चॉम्स्की, जो दुनिया के सबसे जाने माने पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स में से एक हैं, वो दिल्ली में आए थे और उन्होंने एक बात कही कि मैंने पूरी दुनिया में घूमा हूँ, एक तरफ गरीबी जिस तरह से खुल के सामने उसकी जो तस्वीर दिखती है, मैंने कहीं नहीं देखा जितना मैंने हिंदुस्तान में देखा है। पर उन्होंने एक और बात भी कही कि मैंने ऐसा मध्यम वर्ग दुनिया में नहीं देखा है जिसमें इतनी एक क्षमता है कि वो देखे और मुंह मोड़ ले, जितना हिंदुस्तानी कर पा रहा है। और हमें अपने मध्यम वर्ग में हमें तकलीफ नहीं होती है, और वही मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है कि हमें तकलीफ ही नहीं है। मेरे साथी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पटना में भी और शहरों में बेघर लोगों के बीच में हम काम करते हैं। इस शहर में हम सभी जो यहाँ रहते हैं,
एक दिन नहीं, मतलब आपकी ज़िंदगी का एक दिन नहीं हो सकता सिवाय अगर आप घर से ही ना निकलें, जब आपको बेघर लोग दिखें नहीं। हम किसी पार्टी से रात को लौट रहे हैं, एक पिक्चर देखने गए हैं, दोस्तों के बीच में हमने वक्त गुजारा है, और घर जब लौटते समय ज़रूर हमें दिखेगी एक छोटी सी बिटिया जो सड़क पर सोई हैं। हमें वो बिटिया उसी उम्र की है शायद जो हमारी अपनी बेटी या छोटी बहन या पोती उसी उम्र की होगी, और इस बच्ची को शायद रात का भोजन किसी कचरे के ढेर से मिला हो। रात को ठंड में वो खुले आसमान के नीचे सोएगी फुटपाथ पर, शायद रात में कोई उसका बलात्कार कर लेगा। सुबह 4 बजे उन्हें जल्दी से जल्दी जागना होगा ताकि कचरे के ढेर से वो कुछ और निकाल पाए ताकि अगले दिन वो कुछ खाना खा सके। वो कभी स्कूल का क्लासरूम कैसे दिखता है वो कभी देख नहीं पाएगी। उस बच्ची को हम देखते हैं और फिर अपने घर जाते हैं और अपनी बच्ची को हर जो हमारी क्षमता हो हर सुविधा देने के लिए हम तैयार हैं। मेरी बेटी और उस बच्ची के बीच में शायद 1 किलोमीटर का ही फासला रहा हो, लेकिन वो किलोमीटर 1 किलोमीटर इतनी बड़ी दूरी है, शायद उससे कोई बड़ा फासला इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी कभी भी उस जगह नहीं पहुंचेगी जहां वो बच्ची है, वो बच्ची उस जगह पे कभी पहुंच नहीं पाएगी जहां मेरी बेटी है। यही मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। बंधुता का ये मतलब है कि मैं उस बेटी को देखूं और समझूं कि वो मेरी बेटी है, और अगर मुझे सहन नहीं है कि मेरी बेटी उस हालात में जीने के लिए मजबूर हो, मुझे थोड़ी तकलीफ तो कम से कम हो कि एक और बच्ची है मेरी बेटी की उम्र की जो इस हालात में जीने के लिए मजबूर है। अखिल गुप्ता हैं एक बहुत प्रसिद्ध सामाजिक शास्त्र में जो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने एक शोध किया, उन्होंने एक सवाल पूछा कि कितने लोग हैं जो हिंदुस्तान में मर जाते हैं हर साल, कितने लोग मर जाते हैं बिना किसी कारण के, मतलब प्रिवेंटेबल डेथ्स। भूख आज प्रिवेंटेबल है पूरी तरह से, कोई कारण नहीं कि कोई भूख से मरे, कोई कुपोषण से मरे, कोई इसलिए मरे क्योंकि उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया ना हो। तो उन्होंने सवाल पूछा कि कितने लोग हर साल हिंदुस्तान में अकारण मर रहे हैं, और बहुत ही कंजर्वेटिव आधार पे उन्होंने जो आंकड़े निकाले, उन्होंने कहा था लगभग 20 लाख लोग हिंदुस्तान में हर साल अकारण मरते हैं। अगर आप इस आंकड़ा को समझना चाहते हैं तो जो पिछला जो एक दुष्काल देश में हुआ था, सबसे बड़ा अकाल बंगाल में 1943 को जो अकाल हुआ था, उसमें 30 लाख लोग मरे थे। तो एक तरह से जो अखिल गुप्ता हमें समझा रहे हैं कि लगभग जो ग्रेट बंगाल फैमिन था, उसी तरह का एक फैमिन एक्चुअली हर साल हमारे बीच में गुजर रहा है, लेकिन हम देख भी नहीं पा रहे हैं उसे। उससे चिंतित होना तो बहुत दूर। यही मुझे लगता है कि हमारे अगर लोकतंत्र, हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है, उसमें हम
गर्व तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हम इसे देख पाएं और उससे हमें दिल में तकलीफ हो। भूख की बात मैंने की, बहुत आसान है। हम में से शायद इस कमरे में कोई ऐसा इंसान यहाँ नहीं बैठा है जो जानते हैं, जिन्होंने महसूस किया है भूख। हमने कईयों ने उपवास रखा है, लेकिन वो हमने अपने फैसले से उपवास रखा है, और हम जानते हैं कि इसका अंत जब हम चाहेंगे वो अंत होगा। हम में से ऐसा कोई नहीं है शायद इस कमरे में जिन्हें भूखा रहना पड़ा अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मजबूरी से। उससे भी बढ़ के हम में से कोई शायद इस कमरे में नहीं है जो इस मजबूरी को जानते हैं कि आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्ग माँ बाप को खाना उनको देने में असफल हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं उसके बारे में। मुझे कई साल पहले मैं सुप्रीम कोर्ट कमिश्नर था राइट टू फूड लगभग 12 सालों तक, और इस नाते मैं बहुत सारे देश के हर कोने में गया भूख के अध्ययन और उसको रोकने के रास्तों को ढूंढने में। और बहुत सारी कहानियाँ मैंने सुनी, लेकिन कुछ मुसाहर बहनें थीं जिन्होंने एक दिन मुझे, एक शाम को हम बैठे थे, कई चीज़ों की बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि, और ये बहुत साल हो गए लेकिन वो बात आज भी मैं याद करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि सबसे मुश्किल शिक्षा हम अपने बच्चों को क्या देते हैं? तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा ये शिक्षा कि भूखा कैसे सोया जाए। उनका कहना था कि बहुत सारे ऐसे शाम होते हैं जब हम पूरा दिन अपने बच्चे को खाना नहीं दे पाते हैं और जानते हैं कि रात को भी हम खाना नहीं दे पाएंगे। ऐसे दिन जब कोई खाना नहीं होता तो कहते हैं कि हम निकलते हैं और अनाज के दानों को ढूंढने निकलते हैं। और कहाँ में अनाज के दाने मिलते हैं? उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा गोबर में अधपचा जो दाने हैं उसको हम निकालते हैं। और मैंने अब उसके बाद कई दलित जो आत्मकथा हैं पढ़े हैं, और उसमें कई हमारे दलित लेखक ये याद करते हैं बचपन में उन्होंने बहुत वक्त गोबर से निकाले हुए अन्न के से बने हुए रोटी खाए हैं। वो ये भी बताएं कि जब किसान फसल काट लेता है तो जो दाने गिरते हैं उन दानों को वो इकट्ठा करते हैं। इस तरह से कोशिश करते हैं कि कुछ खाना हो, लेकिन उतना भी खाना अगर नहीं हो तो बच्चे को वो समझाते हैं कि आपको भूखा सोना मुझे सिखाना है कि कैसे आप सोएं। मेरी अपनी एक बेटी है, और जब वो बोल रही थी तो मैं सोच रहा था कि मुझे ज़िंदगी कैसे दिखती अगर मुझे ये शिक्षा अपनी बेटी को देना पड़ता। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा वक्त है जब ज़रूरी नहीं है। एक वक्त था शायद जब अन्न इस देश में हम उतना अन्न का उत्पादन नहीं कर रहे थे जिससे हर पेट को भरा जाए, लेकिन आज हमारे सरकारी गोदामों में इतना अनाज है कि वो सड़ रहा है। 70 मिलियन टन बताते हैं। उससे मुझे और आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना अनाज है। जॉन द्रेज एक अर्थशास्त्री हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे समझाया एक बार कि 70 मिलियन टन का मतलब ये है कि अगर आप अनाज के बोरों को एक लाइन में लगाएं जो हमारे सरकारी गोदामों में हैं, तो दुनिया से आप चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, लौट सकते हैं, और 2-3 घेरा भी दुनिया का कर सकते हैं। उतना अनाज सरकारी गोदामों में है। उसके बावजूद भी लगभग
20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं आज भी हिंदुस्तान में, और हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। मेरा यकीन है कि इतिहासकार 100 साल 200 साल बाद जब हमारे युग का इतिहास लिखेंगे, वो मानेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे क्रूर अगर कोई युग था तो ये युग। और मैं इसका कारण आपको बताता हूँ। इसका कारण यही है कि पहले साधन कम थे, संभावनाएं कम थी, अनाज कम था, लेकिन आज इस सब को होते हुए एक और आंकड़ा देता हूँ आपको। जो हिंदुस्तान का 1%, जो 1% लोग हैं सबसे अमीर, एक साल में उनका धन में वृद्धि जितनी हुई, उनका धन नहीं, उनके धन में जितनी वृद्धि एक साल में हुई, वो हमारे भारत शासन के संपूर्ण बजट से ज़्यादा था। जब हम कहते हैं हमारे पास धन नहीं है आज कि हम हर बच्चे को शिक्षा ढंग का दे सकें, हर बच्चे का स्वास्थ्य की व्यवस्था कर सकें, हर बच्चे को छत हो, वो झूठ है। वो धन है, वो अन्न है, लेकिन हम कुछ है हमारे समाज में, कुछ टूट सा गया है, कुछ टूटा पड़ा है, जिस कारण से हम आज भी, हमें तकलीफ नहीं है कि इस सब के बावजूद भी हम सुनिश्चित नहीं करते हैं कि भूख समाप्त हो, जो बेघर कोई ना रहे। पूरी दुनिया में भी यही हालात हैं। लोगों ने कैलकुलेट किया है कि जो डॉलर बिलियनर्स हैं दुनिया में, उनके धन पर सिर्फ 1.5% अगर टैक्स लगाया जाए, वो काफ़ी है सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा, दुनिया का हर बच्चा को शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मिल पाए। 1.5% सिर्फ डॉलर बिलियनर्स पे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक लंबे अंधेरी रात की बात मैं कर रहा हूं, और इस बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ती जा रही है। 45 साल से में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश में नहीं थी जितना आज हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने नौजवानों को, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नौजवान किसी देश में हैं तो हिंदुस्तान में है। हर दूसरा हिंदुस्तानी आज 25 साल से कम उम्र का है, और मुझे नौजवानों पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि अगर हमें एक सुंदर देश बनाना है तो नौजवान ही उसके नेतृत्व करेंगे, जैसे आज हम देख रहे हैं सड़कों पर। लेकिन उन ज़्यादातर नौजवानों को ना हम शिक्षा दे पा रहे हैं, ना पोषण दे पा रहे हैं, ना अवसर दे पा रहे हैं, ना रोज़गार दे पा रहे हैं। ये हमारे देश का जो लंबी अंधेरी रात की बात कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक और अंधेरा भी और घना होता जा रहा है, और वो है नफरत का। ये बिल्कुल कहना सही नहीं है कि पिछले 5 या 6 सालों से ही हमारे समाज में नफरत बढ़ता जा रहा है। इसका एक लंबा सिलसिला चला है। मैंने गांधी जी की हत्या की बात की, उससे पहले जो उनकी लड़ाई, उसकी बात की। लगभग मेरा जन्म आज़ादी के 8 साल बाद हुआ। मुझे याद नहीं है, मेरे पूरे बचपन में मैंने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बात कभी सुनी है। हालांकि मेरा परिवार बंटवारा वाला परिवार था, मैंने कभी भी किसी के मुंह से भी, मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी नफरत की बात सुनी हो। ना मुझे कभी स्कूल में मैंने उस बात को सुनी, ना मैंने टेलीविज़न में, सोशल मीडिया तो थी ही नहीं।
ना मैंने फिल्मों में नफ़रत की बात सुनी। आज मेरा पोता, मेरी बेटी का लड़का 1.5 साल का है। मैं जब उन्हें देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जैसे वो दुनिया को समझने लगेगा, वो नफ़रत की बात सुनेगा। वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली में ही सुनेगा, वो स्कूल में सुनेगा, अपने दोस्तों के बीच में नफ़रत की बात सुनेगा, सोशल मीडिया में वो सुनेगा, फिल्मों में, टेलीविज़न में वही बात सुनेगा, अपने नेताओं के मुंह से वो नफ़रत की बात सुनेगा। ये है आज के वक्त की अंधेरे की बात जो मैं कर रहा हूँ, अंधेरी रात, तूफ़ानी रात। और उसके लिए सभी, क्योंकि जो शुरू का, जो मेरे बचपन का जो वक्त था, उसके बाद हिंदुस्तान जैसे बदलने लगा, सभी राजनीतिक दलों को, हमारे सभी नेताओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में ये बहुत ज़्यादा गहरा हो गया है। इतिहास में हम जाएं तो 100 साल पहले ये लड़ाई जो आज हम सड़कों पे देख रहे हैं, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। इसकी शुरुआत 100 साल पहले शुरू हुई थी, जब महात्मा गांधी आज़ादी की लड़ाई की जिम्मेदारी, उसकी रहनुमाई की जिम्मेदारी उन्होंने ली दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद। और उनकी ये कल्पना थी, और हम सब की कल्पना जो उनके साथ थे, हमारे जो पूर्वज हैं, ये कि ऐसा देश होगा जहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को मानते हैं, उस अल्लाह को मानते हैं, किसी को नहीं मानते, आप इस जात के हैं, ये बोली है, सब बराबर के इंसान होंगे, बराबर के हक रखेंगे इस देश पर। लेकिन हिंदू महासभा आरएसएस का गठन भी वही 100 साल पहले जो हुआ, वो भी उनकी एक अलग कल्पना थी कि ये हिंदुओं का देश होगा, हिंदू राष्ट्र होगा, इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन लोगों को बराबर के हक हम नहीं दे सकेंगे इस देश में। उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे अगर जीना है तो उन्हीं शर्तों पे वो जिएंगे। ये अलग किस्म के दो सोच थे। मुस्लिम लीग खड़ा हुआ, मुस्लिम लीग ने कहा कि ये एक देश नहीं है बल्कि 2 देश हैं, एक मुस्लिम पाकिस्तान और एक हिंदू हिंदुस्तान। और 2 देश जब बनेंगे तो मुसलमानों को वहाँ जाना पड़ेगा। और उस वक्त गांधी जी ही नहीं बल्कि मौलाना आज़ाद जैसे हमारे जो नेता थे, मौलाना आज़ाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, और ये दोनों पहचान मेरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक पहचान को मैं अपने आप से अलग नहीं कर पाऊँगा, और ये देश मेरा है। इस देश के बिना मैं अधूरा हूँ, लेकिन मेरे बिना ये देश भी अधूरा है। ये उस वक्त का फैसला था। लेकिन ये लड़ाई चलती रही है, और हम लोग अपने लोकतंत्र के उस मोड़ पे पहुँचे हैं जहाँ एक तरह से एक निर्णायक मोड़ है, और हम भारत के लोगों को तय करना पड़ेगा कि हमें किस तरह का देश चाहिए। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये इसकी बहस मैं नहीं करूँगा। मैं जिस पक्ष में हूँ वो तो बहुत साफ है, आप किस पक्ष में हैं वो आपको तय करना होगा। लेकिन ये निर्णायक मोड़ है, और इस वक्त पिछले 5-6 सालों में मैं देखता हूँ कि 3 किस्म की लड़ाई लड़े गए हिंदुस्तान के, खास करके हिंदुस्तान की जो मुस्लिम आबादी के लोगों के खिलाफ। एक राजनीतिक लड़ाई है सत्ता की, जहाँ पे उनको पॉलिटिकली इरेलेवेंट कर दिया गया है। क्योंकि अब तक ये माना गया था, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो हमें बताते थे कि मुस्लिम लोगों के लिए आबादी ऐसी है कि कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उनकी आबादी इतनी है कि उनको उनके हितों के बारे में सोचे बिना कोई भी सत्ता में, केंद्र में आ ही नहीं सकता है। लेकिन
भाजपा में हमें दिखाया है कि अगर बाकी सब लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाएं तो हम मुसलमानों को पॉलिटिकली इतने हाशिए पे डालेंगे कि कोई उनकी बात ही नहीं कर पाएगा। और ना सिर्फ भाजपा बल्कि जो तथाकथित सेकुलर पार्टीज़ हैं उनका भी हमने देखा है कि वो मुस्लिम शब्द तक भी बोलने के लिए डरने लगे पिछले कई सालों से। तो एक पॉलिटिकल इरेलेवेंस वो एक प्रोजेक्ट जो हमने देखा। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी हमने देखा जहाँ पे सामाजिक तौर पे नफ़रत, जिस नफ़रत की बात मैं कर रहा हूँ वो इतना आम हो गया, हमारे समाज का इतना एक अभिन्न हिस्सा सा बन गया। उसके बहुत सारे पहलू थे जो हेट स्पीचेस हमारे बड़े नेता करते हैं। वो ऐसे स्पीचेस हैं, मैं कलेक्टर रहा हूँ, एक एक स्पीच के लिए सारे नेताओं को जेल में डालना कानून कहता है, लेकिन सवाल ही नहीं उनको और ज़्यादा बड़े पद ही मिलेंगे। लेकिन हेट स्पीच से भी बढ़ के जो लिंचिंग की जो सिलसिला चलने लगा, लिंचिंग के लिए हिंदी में कोई शब्द भी नहीं है, किसी भी हिंदुस्तानी भाषा में नहीं है सिवाय बंगाली में, जो मैं अध्ययन किया। जन धुलाई आई थिंक कहते हैं, गौन धुलाई। तो क्योंकि कलकत्ता में जेब कतरों को भीड़ द्वारा मारने की एक लंबा सिलसिला चला, लेकिन देश में ये हम देख नहीं पाए कि पूरी भीड़ इकट्ठा होकर किसी को पीट के जो मारने का जो सिलसिला है। दलितों के खिलाफ ये ज़रूर हुआ है और बहुत सालों से हुआ है, पीढ़ियों से हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से हमने उसे देखने लगे, वो जब दौर चलने लगा और मैं कई जगह गया जहाँ इन लिंचिंग्स की स्थितियों को देखा, मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक बार फिर ये इस बात की हुई कि हम खामोश रहे। हमारी खामोशी, मतलब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग भीड़ को मार रहे हैं, लेकिन बचाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और इसके खिलाफ जो पूरे देश में एक आवाज़ उठनी चाहिए थी वो नहीं उठ पाई। और उस कारण से फिर 3-1 सालों पहले मैं और कुछ साथियों ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम हमने दिया कारवाने मोहब्बत। हमारा ये मानना था कि जैसे अंधेरे से आप लड़ना चाहते हैं और अंधेरा आप अंधेरे से लड़ेंगे तो अंधेरा तो और गहरा होगा। नफ़रत से आप लड़ना चाहते हैं तो आप नफ़रत से तो उससे लड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ मोहब्बत से लड़ सकते हैं। तो हम मोहब्बत से इससे कैसे लड़ें? तो कारवाने मोहब्बत ने तय किया कि हमने एक वादा किया कि देश के किसी भी कोने में अगर लिंचिंग होगा तो हम वहाँ पहुँचेंगे, उनके घरों में पहुँचेंगे जैसे कोई परिवार वाला पहुँचता है। और सबसे पहले हम उनको कहेंगे कि आप अपने दुख में अकेले नहीं, हम आपके दुख में शामिल हैं। दूसरी बात हम उनसे कहेंगे कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बन गया है जहाँ पे आपको ये झेलना पड़ा। और तीसरी बात कि आपके इंसाफ की लड़ाई में और आपकी जो टूटी ज़िंदगी उसको जोड़ने में जो आपकी कोशिशें रहेंगी, हम उसमें शामिल रहेंगे। और चौथा है कि हम आपकी कहानी दुनिया को बताएंगे। अब तक हमने 33 ऐसे सफ़र किए हैं कारवाने मोहब्बत के। 14 प्रदेशों में हम वक्त पर गए हैं। बिहार में भी हम गए हैं, सीतामढ़ी में गए, कई और जगहों में गए हैं जहाँ पे लिंचिंग की घटनाओं को हमने देखा। और इस दौरान जो मैंने देखा, ना सिर्फ नफ़रत बल्कि इतना ज़्यादा नफ़रत कि ये हालात, जब हम इन परिवारों से मिलते थे, कई कहते थे कि बस वो भीड़ जब आए ना, बस गोली मार देते तो ठीक रहता, बस छुरा मार देते तो ठीक रहता, इतना टॉर्चर करके क्यों मारा? मतलब आँखों को निकालना, जो उनके गुप्तांग हैं उसमें पत्थर से पीट के मारना,
जो हालात हमने देखे, जिस क्रूरता समाज में आम हो गया है। और सीतामढ़ी में तो औरतें भी शामिल थीं। एक बुज़ुर्ग आदमी बस एक अफवाह चला कि एक दुर्गा जी की मूर्ति का हाथ तोड़ा गया है, तो एक बुज़ुर्ग मुसलमान दिखता हुआ आदमी चल रहे थे, और भीड़ ने कहा कि उनसे हमें बदला लेना है, और उन्हें जिस तरह से पीट पीट के मारा, और जो तस्वीरें दिखी उसमें औरतें भी शामिल थीं। तो ये जो समाज, और ये देश के हर कोने में हमने देखा, ये क्रूरता, नफ़रत की जो क्रूरता है, और उसका जो वीडियो टेप करके, मतलब आप ना सिर्फ ये अपराध कर रहे हैं, बल्कि आपको इतना उस पर गर्व है कि आप उसकी तस्वीर लेके सोशल मीडिया में फैला रहे हैं, जहां आप अपनी तस्वीर को सामने रख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि आप हीरो बन जाएंगे। ये हालात देखे, पुलिस की जो कार्रवाई, पुलिस हर जगह जो मारा गया है उसे दोषी मानते हैं, और जो मारने वाले लोग हैं उनको बचाने की हर कोशिश कर रहे हैं। ये हमने जो हालात देखी, और हर जगह मैं एक सवाल पूछता रहा इन सारे सफ़र में, कि किसी ने तो आपको बचाया होगा, किसी ने आपको ये रोका होगा भीड़ को, और हर जगह लोग बताते थे कि कोई नहीं आया। और मैं बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ, अपने देश से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बहुत उम्मीद इस पे रखता हूँ, लेकिन कि इस देश में इंसानियत अभी भी मरा नहीं है। मैं अपनी उम्मीद को खोने लगा, और फिर 1.5 महीने 2 महीने पहले एक अभियान शुरू हुआ, जिसने ये सारी उम्मीद वापस लौटा दी है। क्योंकि सरकार ने जब ऐसा कानून बनाया जहां नागरिकता पे, और उसके बारे में वक्त नहीं है, मैं बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन मज़हब के आधार पे पहली बार कानून में जब फ़र्क किया गया, उनका मानना था, उनका यकीन था कि अगर इसका विरोध करेंगे भी तो सिर्फ मुसलमान करेंगे, और उनको तो हम आसानी से उनकी आवाज़ को दबा देंगे। उनको कल्पना नहीं थी कि इस देश में हर कोने में हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होके इसका सामना करेंगे, इसके खिलाफ लड़ेंगे। और मैं देश के हर कोने में इन प्रोटेस्ट में शामिल रहा हूँ, और हर जगह मुझे बहुत दिल में जो उम्मीद, सबसे ज़्यादा मुझे बंधुता दिखता है कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठा खड़े हो के देश का, एक हाथ में तिरंगा, दूसरे हाथ में संविधान, दिल में मोहब्बत और साहस लेते हुए हिंदुस्तानी हर कोने में निकल पड़े हैं, ये कहने के लिए क्या बहुत हो गया। हमें एक ऐसा देश नहीं चाहिए जिसमें नफ़रत हो और हमें मज़हब के आधार पे बांटा जाए। अब हमें स्वीकार नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी बोलने लगा है। हम याद करें तो जर्मनी में जो ऐसा दौर, जब जर्मनी गुजरा था, यहूदियों के ख़िलाफ़ ऐसा माहौल बनाया गया था, उनके लिए अलग नागरिकता कानून, इसी तरह से उन्हें नागरिकता के हक़ से जब अलग किया गया था और अलग किस्म के अत्याचार हुए थे, एक भी मौका नहीं है जब गैर यहूदी जर्मन के लोग सड़कों पे निकले अपने यहूदी भाई और बहनों के समर्थन में। वो हम हिंदुस्तानियों ने आज किया है। इसलिए आज एक बार फिर हमें उम्मीद है कि इस देश में गांधी और अंबेडकर के देश को हम आज भी बचा सकते हैं। कई सवाल पूछे जाते हैं कि इस मूवमेंट का भविष्य क्या है, क्या ये कामयाब होगा कि नहीं। मेरा मानना है कि कामयाब हो चुका है। इसलिए हो चुका है क्योंकि हमने साबित किया है कि इस देश में हम लोग, अलग अलग मज़हब के लोग इकट्ठा खड़े होकर नफ़रत और नाइंसाफ़ी का सामना करने की आज भी एक संभावना है, एक तैयारी है हमारे देश में। यही हमारी कामयाबी है, हम कामयाब हो चुके हैं।
ये मूवमेंट आगे कहाँ चलेगा, कितनी देर तक लोग सड़कों पे बैठेंगे, उतरेंगे। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है कि सड़कों पे लोग अब और निकलते जाएं। ज़रूरी एक तरफ जो एनपीआर का जो खतरा है उसका सामना हमें असहयोग आंदोलन से करना है, लेकिन उससे भी बढ़ के हमें अपने समाज में बंधुता की भावना को और ज़्यादा मजबूत करना है। यही हमारी लड़ाई है और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई सरकार के खिलाफ कम और समाज के अंदर की लड़ाई है। और अगर हम अपने समाज में बंधुता को मजबूत करें तो कोई भी सरकार नफरत की राजनीति में, असमानता की राजनीति में कभी कामयाब नहीं होगा। जिम्मेदारी उस सरकार की नहीं, जिम्मेदारी हमारी है। जिस हालात में हम अपने आप को पाते हैं, इसमें हमें अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराना होगा। अपने आप हम भारत के लोगों को ही एक बार फिर ये फैसला करना होगा कि हम किस तरह का देश चाहते हैं। इसके उदाहरण हमें और देशों में मिलता है। मैं न्यूजीलैंड का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड में मस्जिदों के ऊपर एक आदमी ने तय किया था, वहाँ गोरा एक लड़का था, उसने तय किया कि वो मुसलमानों को मस्जिद में घुस के उनका कत्ल करेगा। उन्होंने कत्ल 2 मस्जिदों में जाके कत्ल किया। लगभग 50 लोग नमाज पढ़ते समय मारे गए। तुरंत वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, एक औरत हैं, लगभग 38 साल की हैं, और उन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को उदाहरण दिया कि क्या एक नेता को ऐसे वक्त में करना चाहिए। उसी तरह से जैसे हम कारवाने मोहब्बत में कोशिश करते हैं, वो उनके घरों में गईं, सर ढका, क्योंकि एक तरह से एक रिस्पेक्ट देते हुए आपके जो कल्चर है उसके हिसाब से उन्होंने सर ढका, उनसे गले लगी और उनके चेहरे से दिखा कि वो उनके दर्द में शामिल हैं। वही ज़रूरी था। उनके उदाहरण को देखते हुए एक हफ्ता, जो अगला जो फ्राइडे था, पूरे न्यूजीलैंड में औरतों ने सर ढका, न्यूज़ रीडर्स ने सर ढका, पुलिस की महिलाओं ने सर ढका, और हर मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा हुए, हाथों को जोड़ के उन्हें कहा कि आप अपना नमाज इबादत करें, हम आपकी रक्षा में खड़े हैं। वहाँ के जो न्यूजीलैंड के में जो उस मस्जिद जहाँ पे लोग मारे गए थे, उसके इमाम ने फिर कहा, अंग्रेज़ी में ये कहा कि हम वी आर ब्रोकन हार्टेड बट वी आर नॉट ब्रोकन। हमारा दिल टूट गया है लेकिन हम टूटे नहीं हैं, क्योंकि पूरा न्यूजीलैंड ने दुनिया को दिखाया है कि मोहब्बत क्या होता है। मेरी ये तकलीफ़ अब तक ये रही है पिछले कई सालों से कि हमारा दिल टूटा नहीं है जब इतना हमारे भाइयों और बहनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और क्योंकि हमारा दिल टूटा नहीं है, हमने साबित किया है कि हम इतने टूटे हुए लोग हैं। लेकिन आज मैं एक बार फिर ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमने दिखाया है कि हमारे दिल टूटते हैं जब हमारे भाइयों और बहनों के साथ नाइंसाफ़ी होती है, और इसलिए हम अभी तक भी टूटे नहीं हैं। कई नौजवान साथी मुझसे पूछते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी हालत में। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम क्या कर सकते हैं? हज़रत मोहम्मद साहब ने, कई तरीक़ों से इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब ने एक बात कही जो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जब नाइंसाफ़ी आप देखते हैं तो आपका फ़र्ज़ क्या होता है? तो उन्होंने कहा कम से कम जब आप कहीं नाइंसाफ़ी और दर्द देखते हैं, कम से कम अपने दिल से आप रिस्पॉन्ड करें, मतलब आपको बुरा लगे। जो और नेक इंसान है वो अपनी ज़ुबान से उसका जवाब देगा, मतलब उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे।
और सबसे नेक इंसान है जो वो हाथों से उसका जवाब देगा, मतलब जो उसके खिलाफ लड़ेगा। मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को कहता हूँ कि जब हम उस बेघर बच्ची को देखें या नफ़रत के आधार पर लिंचिंग को देखें, तो कम से कम हम दिल से रिस्पॉन्ड करें, हमें बुरा लगे। वही है बंधुता, कि आपका दर्द हो, मेरे आंखों से आंसू निकले। हमारा सबसे गहरा रिश्ता दर्द का रिश्ता हो, मेरे दर्द में आप शामिल हो, आपके दर्द में मैं शामिल हूँ। हम में से जो बेहतर हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, जो सबसे बेहतर हैं इसके खिलाफ लड़ें। लेकिन कम से कम हर हिंदुस्तानी ऐसा बने जिसके दिल में दर्द उठे जब एक दूसरे हिंदुस्तानी को भूख में फुटपाथ पे सोते हुए या नफ़रत की आंधी से जूझते हुए हम देखें, तो अपने दिल से कम हम रिस्पॉन्ड करें। वही बंधुता हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है। वही बंधुता अंत में हमारे देश को इस मुश्किल अंधेरी रात से फाइनली हम उससे अगर रास्ता निकल सकते हैं, इसी रोशनी में जो बंधुता हमें देगी। शुक्रिया। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफ़ी अभिभूत हूँ, और अभिभूत इसलिए भी हूँ क्योंकि हमारे समाज में जो असमानता की बात हर्ष जी ने बताई, जो अन्याय की बातें बताई और बंधुता के अभाव की बातें बताई, इन सबों को इंटेलेक्चुअली हम जानते हैं, हम समझते हैं कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमारा हृदय उद्वेलित होता है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्या अगर हमारा हृदय उद्वेलित होता है तो उस अन्याय के खिलाफ में, असमानता के खिलाफ में और जो नफ़रत की राजनीति है इसके खिलाफ में बोलने का साहस हमारे अंदर है कि नहीं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। हर्ष हमारे सामने उस साहस का एक उदाहरण है। इन्होंने न केवल अपनी नौकरी छोड़ी IAS की, बल्कि पूरे देश में उसके बाद से जिम्मा लिया है कि जिस बंधुता की बात कह रहे हैं, इस बंधुता को फैलाने के लिए और जो अन्याय हमारे समाज में विभिन्न रूपों में मौजूद है उसके खिलाफ न केवल अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बल्कि उठती हुई आवाज़ों को और मजबूत बनाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए और उनको एकताबद्ध करने के लिए इन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित किया है। हर्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, हमारे समाज में और भी किसी भी तरह के समाज की तरह कई तरह की विभाजन की संभावनाएं मौजूद हैं। खास करके धर्म के आधार पर जो विभाजन की जो स्थिति, विभाजन के कारण जो पार्टीशन का उन्होंने जिक्र किया कि वो पैदा हुई, जबकि दूसरी ओर आज़ादी की लड़ाई ने लोगों को जोड़ने का काम किया था। तो ये संभव है कि इसकी संभावना हमारे समाज में है। सवाल ये है कि इस संभावना से हम जो संभावना है उसमें हम किस ओर खड़े हैं। क्या हम इस विभाजन को बढ़ाने जा रहे हैं या इस विभाजन को हम दूर करने के प्रयासों का हिस्सा बनने वाले हैं। हमारे समाज में पिछले कुछ सालों से न केवल सामाजिक कुछ शक्तियाँ जो कि इस विभाजन को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं वो सक्रिय हैं और मजबूत हुई हैं, बल्कि हमारे वैसी शक्तियाँ इस समय सत्ता में भी आ गई हैं और ये सबसे बड़ा खतरा है। और पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं, कोई ना कोई नया मुद्दा उठाया जा रहा है। तो इस समय में ये बहुत ज़रूरी है कि केवल ये ज़रूरी नहीं है कि हम इंटेलेक्चुअली कितना साउंड हैं और कितना समझते हैं, बल्कि ज़रूरी ये है कि इसके खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बनने के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं। हर्ष जी की पूरी तकरीर इस बात के लिए थी कि इस लड़ाई का हम सबों को हिस्सा बनना होगा और हमें बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना होगा। हम सब जानते हैं शाहीन बाग है जो इस तरह की लड़ाई का एक प्रतीक बन चुका है। छोटा सा ग्रुप महिलाओं का खास तौर से महिलाओं का जो प्रतिवाद है ये एक प्रतीक बना है और उसके कारण से हम देख रहे हैं पूरे भारत में, और हर्ष ने सही कहा, न केवल मुसलमान बल्कि हिंदू भी सपोर्ट में पूरे भारत में इस समय में एकताबद्ध होकर के प्रयास कर रहे हैं। ज़रूरत है कि ये जो संघर्ष हो रहे हैं इस समय, इनको एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया जाए। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये जो लेक्चर सीरीज है तक्षशिला और टिस की ओर से, हम समझते हैं कि ये लेक्चर सीरीज उसी संघर्ष का एक हिस्सा है, लेकिन
ये जो बड़ी लड़ाई जो सड़कों पे हो रही है, बाहर हो रही है, उन सभी उस बड़ी लड़ाई का हम सबों को हिस्सा बनना चाहिए। आप सभी यहाँ आए उस लड़ाई का हिस्सा के तौर पर। मैं जानता हूँ आप समाज के विभिन्न हिस्सों से इसमें आए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस तरह के प्रयास मिलजुल कर आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।